Hello dear students, good evening. English Kingdom welcomes you. My name is Deepak Juneja and I am your English teacher. Today we are going to begin the second part of the story, Should Wizard Hit Mommy? So in the first part of the story we have come to know that Roger Skunk has actually changed into the smell of roses. So after that we are going to begin. So those who have not yet gone through the first part of this particular story should definitely go to the description of this video. There you will be finding a link, and from there you can reach on to the first part of this lesson. Today we are going to begin this second part. So Roger Skunk has changed into the smell of roses, and here the storyteller is Jack, who is the main character of the story, and he is telling a story to Joe. Joe is the name of his daughter. So he paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils. He paused. Who paused? Jack paused. Stopped for a while. Jack stopped for a while because a rapt expression was there. A rapt expression means lost expression. Lost expression means as if somebody is lost in somewhere. जैसे कोई कहीं किसी चीज में खो गया हो, ऐसा एक्सप्रेशन जो के चेहरे पर दिखाई दे रहा था. Widened out from his daughter's nostrils. Nostrils is the part of nose, you understand. और वहां से जो ये रैप्ट एक्सप्रेशन अपीयर हुआ, forcing her eyebrows up, उसकी eyebrows up हो गई, and her lower lip down in a wide noiseless grin. और उसके चेहरे पर एक ग्रिन थी. ग्रिन कहते हैं स्माइल. स्माइल which shows your teeth. ऐसी स्माइल जो आपके दांतों को दिखाती है, वैसी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई. मीन्स शी वॉज वेरी हैप्पी. एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वाज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज. ये एक्सप्रेशन उसका बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक्सप्रेशन उसने उसकी वाइफ के चेहरे पर देखा था जब वो कॉकटेल पार्टीज ज्वाइन करती थी. तो कॉकटेल पार्टीज ज्वाइन करते वक्त वो कॉकटेल पार्टीज का हिस्सा नहीं बनती थी, केवल अपनी खुशी को एक्सप्रेस करती थी. शी यूज्ड टू प्रिटेंड एज इफ शी वाज हैप्पी. वो ऐसे प्रिटेंड करने की कोशिश करती थी जैसे वो बहुत खुश थी पार्टी ज्वाइन करके. इन द सेम वे हियर जो आल्सो गेव दैट काइंड ऑफ वाइड एक्सप्रेशन एज इफ शी वाज वेरी हैप्पी. जैसे कि वो बहुत खुश हुई जब रोजर स्कंक की जो स्मेल थी वो रोजेस में चेंज हो गई. एंड ऑल ऑफ ए सडन ही विस्पर्ड. द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस वाज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ roses, roses. Roger Fish cried, and the wizard said very cranky, that will be 7 pennies. So it was the usual plot of the story. स्टोरी का ये यूजुअल प्लॉट था कि विजर्ड यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. विजर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता था एंड ही यूज्ड टू आस्क फॉर मनी, और वो पैसे की डिमांड करता था. एंड दैट मनी ऑलवेज यूज्ड टू बी ग्रेटर देन व्हाट द रोजर क्रीचर हैड. और वो पैसे हमेशा ज़्यादा ही हुआ करते थे, ज़्यादा ही पैसे मांगा करता था जितने रोजर के पास में हुआ करते थे. तो यहाँ पर भी हुआ, उसने 7 पेनीज की डिमांड की. सो व्हाट हैपेंड? रोजर फिश क्राइड. सारे रोजर फिश चिल्लाया, रोजेज रोजेज रोजेज. सो एक्चुअली he wanted to say Roger skunk here, but because every day he was telling a story, so the characters overlapped. इसलिए characters overlap हो गए और उसके मुंह से निकल गया Roger fish. और इसी बात को उस लड़की ने पकड़ लिया. Daddy, what? Roger skunk? You said Roger fish? Daddy, आपको बोलना चाहिए था Roger skunk, लेकिन आप तो Roger fish बोले. Yes, skunk. You said Roger fish, लेकिन आपने तो Roger fish बोला ना. Wasn't that silly? क्या पागल नहीं हो? Wasn't that silly? So it was just a childish gesture. Generally children do in that way. बच्चे इसी तरीके से करते हैं. तो she was challenging her father कि आपने बहुत silly mistake की, आपको रोजर skunk बोलना चाहिए था, but you spoke Roger fish. Very silly of your stupid old daddy. Where was I? Well, you know about the pennies. So very silly. Jack had no alternative option. Jack had no option other than to accept his mistake. जैक के पास में कोई चारा भी नहीं था अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने का. बिकॉज इफ ही हैडंट एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक द गर्ल वुड हैव कंटिन्यूड विद दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन. क्योंकि अगर वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता तो वो लड़की उसी प्रकार के एक्सप्रेशन देती रहती. खैर, ही वॉज नाउ अगेन गोइंग टू बिगिन द स्टोरी. एंड व्हाट वाज द स्टोरी फर्दर कि द विजर्ड वाज आस्किंग फॉर 7 pennies. विजर्ड जो था वो 7 pennies की डिमांड कर रहा था. ओके, रोजर स्कंक सेड, बट ऑल आई हैव इज 4 pennies. And he began to cry because Roger Skunk had only 4 pennies. That's why he started to cry.
Joe made the crying face again. So as the story is advancing, as the story is furthering, Joe is also changing her expression. When Roger Skunk is happy, Joe is also happy. When Roger Skunk is crying, Joe is also crying. But this time without a trace of sincerity. लेकिन इस बार उसके चेहरे पर sincerity नहीं थी जो के. She was doing some naughty behavior. वो थोड़ा सा jump करके expressions अपने थोड़े tight expression दिखा रही थी. This annoyed Jack. Jack was not happy for that. Downstairs some more furnitures rumbled. और नीचे कुछ और फर्नीचर खिसकने की आवाजें आ रही थी. It means to say Claire was busy in the work and Claire should not move heavy things. And the problem was कि Claire को heavy things नहीं हिलानी चाहिए because she was 6 months pregnant. क्योंकि वो 6 months pregnant थी. It would be their third. So soon they are expecting the third child also. And Jack was annoyed because he wanted to go to his wife for help, for giving her help. लेकिन this girl Joe was not ready to sleep. ये लड़की जो सोने को तैयार नहीं थी. So actually he was very annoyed. So the wizard said, "Oh, very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times and look down the magic well, and there you will find 3 pennies. Hurry up." So we are back in the story. Again, wizard told the way as usual he used to tell in the plot of the story, general plot of the story. कि लेन के इस गली के अंत में जाओ, फिर 3 बार घूमो, तुम्हें मैजिक वेल दिखाई देगा, वहां पर तुम्हें 3 पेनीज और मिल जाएंगे, जल्दी करो. So Roger Skunk went to the end of the lane and turned around 3 times, and there in the magic well were 3 pennies. So he took them back to the wizard and was very happy and ran out into the woods, and all the other little animals gathered around him because he smelled so good. So the story was going to have a very happy ending because Roger Skunk had changed into completely Rose's smell, and he was very happy, and all his family, all his not family members, all his friends also were very happy, and they played tag, basketball, football, and baseball, lacrosse, hockey, soccer, and pickup sticks. All these are the names of the games. Many of the games you are already acquainted to. These 2 games, lacrosse and pickup sticks, may be unknown to you, so I'm going to show you certain pictures of these games. Look at here. This is the game of lacrosse. It's just like hockey sticks they are carrying with them, and in this way this game of lacrosse is played. And this pickup sticks, it seems to be a very indoor game की तरह दिखाई देता है. So in that way they enjoyed it very much. So back to the story. What is pickup sticks? Pickup sticks क्या होता है? This is a game you play with sticks, the father answered. Like the wizard's magic wand. Wizard के magic wand के जैसा होता है. Kind of it. ऐसा ही होता है. And they played games and laughed all afternoon, and then it began to get dark and they all ran home to their mommies. So this was the usual plot of the story. Till now the story was going on usual plot. अब तक की जो story वो usual plot पर थी. So Joe also knew that the story had ended. So she was ultimately happy. लेकिन Joe was starting to fuss with her hands. जो ने वापस अपने हाथों के साथ में हंगामा करना शुरू कर दिया, हाथों के जेस्चर शो करना शुरू कर दिया. And look out at the window. She was not ready to sleep at the crack of the day that showed under the shade. और जो दिन की जो सूर्य की किरणें थी वो अंदर आ रही थी शेड से होकर. She thought the story was all over. Jack did not like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. अब जैक को ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो उसे ग्रांटेड लेती हैं, यानी जो उसे ऐसे लेती हैं कि बहुत सीरियसली नहीं लेती हैं. उसको वही औरतें पसंद हैं जो एप्रीहेंसिव होती हैं. एप्रीहेंसिव मीन्स जो उसकी चिंता करती हैं, उसके शब्दों पर ध्यान देती हैं. तो ही वॉज नॉट हैप्पी क्योंकि हिज स्टोरी हैड नॉट एंडेड. उसकी इस कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी. वाइल दिस जो वॉज नॉट इन फॉल्ट. जो बिल्कुल भी फॉल्ट में नहीं थी बिकॉज शी न्यू दैट द स्टोरी हैड एंडेड एंड दिस वॉज द यूजुअल प्लॉट ऑफ द स्टोरी. बट जैक टुडे वांटेड टू से समथिंग मोर. लेकिन जैक जो है आज कुछ नई कहानी और ऐड करना चाहता था. नाउ जो, आर यू लिसनिंग? यस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं आगे. रोजर स्कंक्स मम्मी सेड व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी फर्दर. वी आर बैक इन द स्टोरी. रोजर स्कंक की मम्मी क्या बोली? व्हाट इज दैट awful स्मेल. कैसी बुरी गंदी बदबू आ रही है. व्हाट? दिस वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द गर्ल. व्हाट? शी वाज सरप्राइज्ड क्योंकि शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ टर्न इन द स्टोरी. एंड रोजर स्कंक सेड, इट्स मी मॉमी, आई स्मेल लाइक रोजेस. एंड शी सेड, who made you smell like that? And he said, the wizard.
And she said, well, of all the now, you come with me and we are going right back to that very awful wizard. Means Roger Skunk's mummy did not like that particular smell. To her, that smell of roses was actually an awful smell. She was not happy. She was very unhappy. She wanted to change the smell. Joe sat up. What was the reaction of Joe? Joe उठकर बैठ गई. Her hands dabbling in the air with genuine fright. Fright means here fear. उसके जो हाथ थे वो हवा के अंदर चल रहे थे और बड़ी बुरी तरह से डरी हुई थी वो. But daddy, then he said about the other little animals run away. लेकिन डैडी क्या उसने कहा नहीं कि दूसरे जानवर उससे दूर भाग जाते हैं, खेलते नहीं हैं. हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ. उसके हाथ जो है बड़ी तेजी से आगे की तरफ चल रहे थे. इनटू द अंडरब्रश. अंडरब्रश मीन्स फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ. ये हर रेफर करता है मदर को. किसकी मदर? रोजर स्कंक की मदर को. All right, he said, but mommy, all the other little animals run away. तो here जो जैक था, जैक wanted to advance the story on a rapid pace. जैक जो अपनी स्टोरी को रैपिड पेस पर आगे बढ़ाना चाह रहा था, इसलिए उसने कहा कि उसके हाथ जल्दी जल्दी चलने लग गए. किसकी तरफ? अंडरब्रश की तरफ. यानी अंडरब्रश का मतलब फॉरेस्ट की तरफ. बट जो डिस्टर्ब, लेकिन जो ने डिस्टर्ब किया कि क्या उसने अपनी मम्मी को ये नहीं कहा कि सारे जानवर उससे दूर भागते हैं. दैट्स वाई ही रिवाइज द स्टोरी. इसलिए उसने उस स्टोरी को रिवाइज किया कि ठीक है, उसने कहा मम्मी ऑल द लिटिल अदर एनिमल्स रन अवे एंड शी सेड आई डोंट केयर, यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजिट. तो मम्मी का क्या आंसर था कि मुझे इसकी परवाह नहीं है. यू शुड स्मेल, यू शुड रियलाइज योर आइडेंटिटी. तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को रियलाइज करना चाहिए. तुम्हें बिल्कुल स्कंक की तरह ही रहना चाहिए, न कि किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो. एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विथ रोजर स्कंक एंड हिट दैट विजिट राइट ओवर द हेड. और वो अपने साथ में एक अम्ब्रेला लेकर गई और रोजर स्कंक के साथ में, और जाकर उस विजिट के सिर पर जोर से मार दिया. नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स. Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. Inspiration came to her. Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. जो का क्या रिएक्शन था? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. She put her hand out to touch his lips. उसने अपना हाथ बाहर निकाला अपने पापा के लिप्स को टच करने के लिए ताकि वो आगे ना बोल पाए. लेकिन इन एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स जो उसका एग्रेशन था, वो ट्रूथ का जो सोर्स था उसको स्टॉप नहीं कर पाई. लेकिन फिर इंस्पिरेशन केम टू हर. फिर उसके दिमाग में इंस्पिरेशन आई और उसने बोल दिया नहीं, ऐसा नहीं हुआ. फिर विजर्ड ने मम्मी के सिर पे मारा एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक. और उस स्कंक की स्मेल को चेंज नहीं किया. नो, ही सेड, बट फादर वाज डिटरमिन्ड ऑन दैट. फादर भी डिटरमिन्ड थे. नहीं, ऐसा नहीं हुआ. विजर्ड ने कहा ओके. एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर. और रोजर स्कंक की जो रोजेस की स्मेल थी वो गायब हो गई. ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन. उससे दोबारा से उसमें बदबू आने लगी. बट द अदर लिटिल, ओह, इन दैट वे द गर्ल स्टार्टेड टू शो हर एक्सप्रेशन. गर्ल ने अपने एक्सप्रेशन शो करने शुरू कर दिए कि दूसरे जानवर उसके साथ में नहीं खेलेंगे, क्या होगा उनका. जॉनी, इट्स डैडीज स्टोरी. जॉनी, स्टोरी किसकी है? डैडी की स्टोरी है. डैडी जैसे चाहेंगे वैसे स्टोरी चलेगी. So in that way, this is the way where we try to treat that generation gap. जनरेशन गैप को अधिकतर एल्डर्स जो होते हैं वो ऐसे ही ट्रीट करते हैं. जैसे अगर घर में कोई बच्चा किसी तरह की नुइसेंस कर रहा हो और जनरेशन गैप के कारण कुछ अलग बिहेवियर शो करने की कोशिश कर रहा हो, तो अधिकतर पेरेंट्स ऐसा ही कहते हैं, ये घर किसका है? मेरा है. तो मेरा है तो मेरे घर में मेरे अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा. इन द सेम वे द फादर वाज सेइंग हियर, हुज स्टोरी इज दिस? ये स्टोरी किसकी? इट इज द स्टोरी ऑफ डैडी. सो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू डैडीज स्टोरी ओनली. Shall daddy not tell you any more stories? Her broad face looked at him through sifted light, astounded. Broad face means चौड़ा चेहरा. Whose broad face? The girl's broad face. उसकी तरफ देख रहा था, यानी वो अपने पापा की तरफ देख रही थी. Through sifted light. Sifted light means filtered light. The light which was coming through the shade, through the curtain, जो curtain से होकर आ रही थी. Astounded, she was very surprised. This is what happened then. Roger Skunk and his mommy went home and they heard woo 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 woo. It was the choo 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 train bringing Daddy Skunk home from Boston, and they had lima beans, celery, liver, mashed potatoes and pie oh my for dessert.
पाई ओ माई एक स्वीट डिश का नाम है। डेसर्ट कहते हैं खाने के बाद में खाई जाने वाली जो एक स्वीट डिश होती है, उसको डेसर्ट बोलते हैं। तो इस तरह से रोजर स्कंक घर गया, फिर उसकी मम्मी ने और उन्होंने उस ट्रेन की आवाज़ सुनी, उसके पापा घर आए, फिर उन्होंने खाना खाया। इन दैट वे द स्टोरी एंडेड। And when Roger Skunk was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much. और जब वो घर पे रोजर स्कंक बिस्तर में सोने के लिए गया तो मम्मी स्कंक वाज वेरी हैप्पी. शी वेंट टू देयर एंड शी सेड कि नाउ ही वाज लुकिंग और ही वाज स्मेलिंग लाइक रोजर स्कंक एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. बट डैडी बट एंड इफ yet work continue, अभी भी ये जारी थे. लेकिन डैडी what? Then did the other little animals run away? Again the concern was that other little animals did not play with him. तो same concern she was raising. तो क्या वो उसके साथ में खेलते थे? No, because eventually they got used to the way he was and did not mind it at all. Eventually means ultimately they became habitual of that and they did not run away from there. Now the girl did not understand the word eventually correctly. So what did she? What is eventuality? Eventuality, ये eventually को यहाँ पर वो eventuality pronounce कर रही है. इसका क्या मतलब होता है? In a little while. In a little while का मतलब कुछ समय के बाद में. That was a stupid mommy. वो तो बहुत stupid mommy थी. It was not. ऐसा नहीं था. He said with rare emphasis. The father was angry. The mommy was not stupid, but and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. तो उसने जिस एम्फेसिस के साथ में, जिस दबाव के साथ में लड़की को कहा कि नहीं वो मम्मी स्टूपिड नहीं थी, ऐसा लग रहा जैसे वो अपनी मदर को डिफेंड कर रहा था. नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव ए लॉन्ग गुड नैप. अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सिर पिलो के अंदर रखो एंड गो टू स्लीप. He adjusted the shade. Shade means curtain. So not even a crack of day showed, ताकि कोई भी बाहर से रोशनी ना आए. And tiptoed to the door. And tiptoed means दबे पाँव दरवाजे की तरफ गया. In the pretense, ऐसा मानकर कि she was already asleep, कि वो सो गई है. But when he turned, लेकिन जब वो मुड़ा, she was crouching on top of the covers. वो कवर्स को जो उसको बेडशीट जो शीट दी थी ओढ़ने के लिए, उसको नीचे गिरा दिया था उसने. And she was crouching on that and staring at him. Hey, get under the covers and fall fast asleep. Bobby is asleep. Father again said the daughter to go into sleep. Father ने दोबारा डॉटर को कहा कि तुम सो जाओ, बॉबी सो चुका है. She stood up and bounced gingerly on the springs. Gingerly means rapidly. फिर से वो गद्दों के ऊपर जोर से उछली और बोली, डैडी what? Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mommy. ठीक है, कल आप मुझे वो कहानी सुनाना जिसमें वो विजर्ड मैजिक वैंड लेगा और मम्मी को हिट करेगा. Her plump arms chopped forcefully. उसके मोटे मोटे जो आर्म्स थे वो उनसे फोर्सफुली चॉप करने का मतलब स्ट्राइक करने लगी. राइट ओवर द हेड, बिल्कुल मम्मी के सिर के ऊपर. It means to say the girl is somehow ready to make any compromise, but the father is not ready. फादर यहाँ compromise नहीं करे, लड़की compromise करे. ठीक है, आज आपकी चलेगी, कल मेरी चलेगी, यानी कल आप मुझे ऐसी कहानी सुना. No, that is not the story. The point is that the little skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals, and she knew what was right. The point ये है कि little skunk को मालूम था कि वो अपनी मम्मी से प्रेम करता था, इसलिए वो जानता था कि उसकी मम्मी कभी उसका बुरा नहीं चाहेगी. No, tomorrow you say he hit that mommy, do it. नहीं, कल आप मुझे ऐसे सुनाना. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs. वो बहुत सारी शिकायतें करने लग गई, बहुत सारा aggression शो करने लग गई कि नहीं आपको ऐसे ही सुनानी पड़ेगी. As she had done 100 of times before, जैसा उसने पहले भी किया था, except that this time she did not laugh. इस बार वो खाली हंस नहीं रही थी. Say it daddy, ऐसा ही कहना डैडी, ऐसी ही कहानी सुनानी. Well, we will see. ठीक है, हम देखेंगे बाद में. Now at least have a rest. सो जाओ. Stay on the bed. You are a good girl. He closed the door, went downstairs. Claire had spread the newspapers. वो नीचे गया दरवाजा बंद करके. नीचे क्लेयर ने न्यूज़पेपर्स स्प्रेड कर लिए थे. पेंट की जो केन कहते हैं जिसमें पेंट भरा रहता है, वो भरी हुई उसको खोल लिया था. उसने एक ओल्ड शर्ट पहन ली थी उसकी.
उसके मैटरनिटी स्मोक के ऊपर। मैटरनिटी स्मोक कहते हैं जो प्रेगनेंसी में जो गाउन पहना जाता है उसको मैटरनिटी स्मोक कहते हैं। एंड वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विथ अ डिप्ड ब्रश। अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड। This footsteps vibration of footsteps was clear cut indication that the girl had not yet gone to sleep. इसलिए उसने जोर से आवाज लगाई, जॉनी shall I come up there and spank you? क्या मैं ऊपर आऊं और तुम्हें पनिश करूं? The footsteps hesitated. Immediately जो footsteps थे वो कम हो गए. That was a long story, Claire ने कहा. The poor kid, he answered, and with utter weariness watched his wife. Why is the kid poor? The kid is poor because she does not understand that particular realization of the story कि identity is supreme, कि identity आपकी identity और originality supreme होती है, न कि आपका pleasure supreme होता है. The woodwork, a case of moldings and rail and baseboards all around them, ये सब चीज़ें फर्नीचर के लिए प्रिपेयर थी जिनको पेंट करना था. और half all tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. एंड उसने अपने आप को एक बहुत मिडिल पोजीशन में महसूस किया. किस तरह की मिडिल पोजीशन में? क्योंकि दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप के कारण था. ही वांटेड हिज डॉटर टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड आइडेंटिटी. वो चाहता था कि उसकी बेटी ओरिजिनलिटी एंड आइडेंटिटी को समझे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझे कि जो आप हो वही इम्पोर्टेंट चीज़ है. यू शुड नॉट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अदर्स. आपको दूसरों की तरह अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे कैसे दिखते हैं. लेकिन द गर्ल वाज नॉट रेडी टू चेंज दैट, एंड शी वाज, फॉर हर द प्लेजर वाज सुप्रीम. उसके लिए प्लेजर और जॉय सुप्रीम था. उसे लगा कि वो अपनी वाइफ के साथ में एक पिंजरे के अंदर फंसा हुआ है. पिंजरा किस तरह का पिंजरा है? दिस इज द पिंजरा और दिस इज द केज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स. ये थॉट्स के कॉन्फ्लिक्ट का पिंजरा है जहाँ पर दो जनरेशन के विचार आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं. ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर. वो उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, बस केवल उसके साथ में वर्क करना चाहता था और उसे टच करना चाहता था. बस ये दिस वॉज ऑल ही वांटेड. सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. इफ यू हैव एनी query, please drop a comment in the comment box. Thank you for watching.